So next is your along the period. So along the period, how the size of the atoms are going to vary. So as we move from left to right in the periodic table, atomic size will decrease because in a period, number of shells remains constant. Thus, there is increase in Z effective and size decreases. Okay, so what they want to say here is, let's say we are taking the examples of these second period elements. Okay, now if I talk about lithium, this is its nucleus, and you have this one shell, and you will have this another shell. For beryllium, again you have your one shell and another shell. Boron, nucleus, one shell and this shell. Let's draw all this. Okay. Okay. Now, what is exactly happening is, for lithium, atomic number is 3. This is your 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. These are your atomic number. And if I start filling the number of electrons, this will have 2 electrons, this will have 1. This will have 2 electrons, and this will also have 2. Again, this will have 2, and this will have 3. Here we will have 2, and here we will have 4. This side again 2, and here we will have 5. In this case 2, and here we will have 6. Here 2, and we will have here 7. Here 2, and here this side we will have 8. Okay, so clearly I can see that while I'm moving from left to right in the periodic table, number of shells are same. Okay, here also I have two shells, in this also two shells, all these have same number of shells. But Z effective. Z effective is what? It is your nuclear charge. Nuclear charge is increasing. For here, nuclear charge is 3. Here it is 4. It is 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So the charge on the nucleus is increasing, but the number of shells are remaining same. So what they are going to do is, as the charge of nuclear charge increases and the number of shells are same, they are going to attract these electrons more towards itself because they have more power. Although electrons are also increasing, but they are increasing in the same shell. Shell is not changing, number of shells is not increasing, number of shells are same, but the power here is increasing for the nucleus. So what nucleus is doing, it is attracting more this shell towards itself because it has more power as compared to oxygen, and same oxygen will have more power as compared to nitrogen. So as we are moving from left to right in the periodic table, your atomic size will be decreasing as the number of shells are same and nuclear charge is constantly increasing.
Understood, everyone? But there is always exception here. What is the exception in this case? Atomic size of inert gas is largest in its respective period. Okay, so here this exception part is saying that from lithium to fluorine there will be continuous decrease in the atomic size, but as compared when we come to here, neon, it is completely filled. Okay, and it is an inert gas. For inert gases we don't consider covalent bonding or any other bonding, we consider van der Waal bonding, and van der Waal, the size of van der Waal will always be greater than the covalent bonding and metallic bonding. Okay, so you can write down the reason here, because in it van der Waals radii is calculated, and van der Waals radius is the largest amongst other. Write down this. So if I want to write down the order here, how I am going to write? Like this, and यहाँ पे suddenly it will be greater than all of these. Okay, so the question here is, which of the following will have the largest size? Tell me the answer. Next question is, which of the following possesses the smallest size?
Okay, do all these questions. Okay, done. Chalo, let's discuss these questions and just see that whether you have done correctly or not. Question one is saying that which of the following have the will have the largest size. So they're talking about the largest size. Okay, 1s2, 2s1. This is your lithium. 1s2, 2s2, 2p3 is your nitrogen. 1s2, 2s2, 2p4 is your oxygen. And 1s2, 2s2, 2p5 is your fluorine. Okay. Now, okay. Now, next is your 1 second, everyone. 1 second, sorry. Okay, so periodic table is visible to everyone. So I am saying here that we have to check this periodic table size difference between lithium, then it was your nitrogen, oxygen, and fluorine. So what does this say? If we move from left to right in the periodic table, atomic size decreases. Matlab, which has the smallest size? Fluorine has the smallest size. Then oxygen, then nitrogen, and the largest one will be for lithium. The question is saying that which will possess the largest size. So what will be your answer? It will be your lithium. That is option A. Got it? सो आंसर विल बी ए. तो कंफ्यूज नहीं होना है. वहां पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2s2 2p है, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में शेल्स के बारे में बताया था. ये एक शेल होता है, ये दूसरा शेल होता है. दिस इज योर वन शेल, बिकॉज दोनों टू टू वाले हैं ना, तो वो एक शेल में ही आते हैं. इधर आ गया एंड दिस इज योर वन शेल. हियर ऑल्सो दिस इज वन शेल, दिस इज अनदर शेल. सो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर इस तरीके से दे दिया तो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो रहा है, आप फाइंड आउट करो कहाँ डिक्रीज हो रहा है. इन द सेम वे नेक्स्ट वाले में हमारे पास पूछ रहा है विच हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज. ओके, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज योर एल्यूमिनियम. This is the electronic configuration of aluminium. This is for sulfur. This is for magnesium. And this is for chlorine. So let's again go to the periodic table.
Okay, so here we can say that what were the elements? There were your aluminium. Okay, so we have aluminium here. Then we had sulfur. Sulfur is here. Then we had magnesium. Magnesium is here. And then we have the chlorine. And question is saying that which has the smallest size. So as we move from left to right in the periodic table, atomic size decreases. That means magnesium has the maximum, then aluminum, then sulfur, and then chlorine. So the smallest size will be for chlorine. So your answer here will be D. Answer will be D. हाँ, that is the reason only, na Prashasti. ऊपर I have explained you along the period shells remain same and number of protons increases. That means the power of nucleus also increases. As the power of nucleus increases, it is going to pull the electrons more towards itself. So of course size is going to decrease. It's the same logic only. उसी से तो हम आंसर निकाल रहे. Okay, ma'am. According to that only, we have given this generalized statement that left to right, atomic size will decrease. Okay. Then we have this third question. In this, they are asking you the correct order of the sizes. Okay. So let's see the periodic table first. Okay. So in the first case, we have silicon. This is your silicon. Then we have aluminium. Then we have magnesium. Then we have sodium, then we have potassium and then we have rubidium. ठीक है. अभी अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स रुबिडियम हैज द ग्रेटेस्ट साइज, देन पोटेशियम एंड देन सोडियम. एंड आफ्टर दैट लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है. देन यू विल हैव मैग्नीशियम, then you will have aluminum, and smallest will be your silicon one. So if you check the options, option A is correct. Okay, let's move on to the second option. Second option is saying that you have fluorine, then you have oxygen, then you have nitrogen, then you have carbon, then chlorine and bromine. Okay, if we are in this period, number of shells are less as compared to chlorine and fluorine, because as we move down the group, number of shells increases. So this has the less number of shells. So clearly, carbon will have the least atomic size, then nitrogen, then sorry, fluorine will have the least atomic size, then oxygen, then nitrogen, and then carbon. Now you have more number of shells. Now we are comparing chlorine and bromine, they have more number of shells. So of course then you will have chlorine, and in the last you will have bromine. That means bromine will have the maximum size. That means option 2 is also correct. Now let's move on to the third option, that is your oxygen, carbon, sulfur, and selenium. Now again, this period has less number of shells, तो पहले इसको लिख लो. तो least will be your oxygen because left to right decrease होता है. Then you will have carbon, and after that sulfur has more number of shells as compared to carbon and oxygen, so there will be sulfur. And selenium has even more number of shells because as you are moving down the group, number of shells are increasing. So this will be the order for this one. So clearly option may third be corrected. Now let's move on to the fourth one. Fourth one has your nitrogen, carbon, phosphorus, and silicon. So let's first deal with this one period because down the group size increase hota hai. Here nitrogen has the least size and then you will have the carbon. Now out of these two, phosphorus and silicon, of course phosphorus have the less size and silicon will have the highest size. So this is the order. So if you see the option, option D is also correct. Our last option kya hai? All of these. So answer will be all of these. Got it? समझ में आया नहीं आया? So answer here is all of these. Okay, do one more question.
arrange the following ions in decreasing order of their size. Okay, first one is your Br minus, Se2 minus, I minus, O2 minus, and F minus. Second one is your Se2 minus, I minus, Br minus, O2 minus, F minus. Third one is your I minus, Se2 minus, Br minus, O2 minus, and F minus. Fourth one is your I minus, Br minus, Se2 minus, O2 minus, and F minus. तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है. टेल मी. ओके चलो देखो, पीरियोडिक टेबल से ही समझने का ट्राई करते हैं, इजी होगा. ओके, कौन कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है सबसे पहले तो ये देख लो. आयोडीन की बात हो रही है, देन सेलेनियम की बात हो रही है, देन हमारे पास Br माइनस की बात हो रही है, O2 माइनस की बात हो रही है, एंड देन F माइनस की बात हो रही है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे O2 माइनस है और ये F माइनस है. अब अगर आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 9 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सेम हो गए. दैट मीन्स दीज टू आर योर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ऊपर से एटॉमिक चार्ज ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का. दैट मीन्स फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस का जो फोर्स अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, साइज छोटा होगा. तो एफ माइनस विल बी द स्मॉलेस्ट वन. देन O2 माइनस, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेल्स भी तो आपको देखने हैं. अब नीचे अगर आओगे यहाँ पे, यू हैव योर selenium and bromine. Selenium is Se2 minus and bromine is Br minus. So 34 plus 2 36. इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स है. ब्रोमीन के पास 35 प्लस 1 बिकॉज एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐड करोगे तो 36 इलेक्ट्रॉन्स. अगेन दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अगर आप इसमें चेक करोगे तो छोटा वाला साइज किसका होगा, Br माइनस का, एंड देन आएगा सेलेनियम 2 माइनस का. एंड लास्ट में क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इसमें ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू उसके बाकी ग्रुप्स, बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, हियर यू विल हैव आई माइनस. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर. अगर आप ऑप्शंस में चेक करोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी योर ऑप्शन 3. गॉट इट? कोई डाउट इसमें? इसीलिए आपको एलिमेंट्स का पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में पता होना ज़रूरी है. दैट्स व्हाई आई टेल दिस लाइक ऑल द टाइम कि धीरे धीरे करके पीरियोडिक टेबल को याद करना चालू करो. ठीक है, अब एक समरी टाइप का मैं बता देती हूँ कि अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपको साइज कैसे कंपेयर करना है. ओके, सो वेन एवर
Question is asking from size of ions, then फर्स्ट आपको चेक करना है नंबर ऑफ शेल्स. सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स चेक करो. ऑफ कोर्स जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होगा साइज ज़्यादा होगा. एज नंबर ऑफ शेल्स इज मोर, साइज विल बी मोर. अब शेल से अगर आंसर नहीं आ रहा है और स्पीशीज आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, देन यू हैव टू गो फॉर दोज. इफ ions are isoelectronic, then size is decided by nuclear charge. तब न्यूक्लियर चार्ज देखो. न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा बिकॉज ज़्यादा पुल करेगा वो. एंड इफ ions are not isoelectronic, then size is decided by Z by E रेशियो. ओके, तब हम Z by E रेशियो से साइज को डिसाइड करते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. गॉट इट? चलो जैसे हम एग्जांपल करें, लेट्स से आई हैव दिस S2 minus Cl minus Na plus Mg plus 2. इसमें साइज का ऑर्डर बताओ. देन वी हैव S2 minus Cl minus सल्फर एंड क्लोरीन. इसमें साइज का ऑर्डर बताओ. क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लो. And third one is your Mg plus 2 Na plus F minus aluminium. डन. देखो फर्स्ट वाले केस में व्हाट विल बी द ऑर्डर. आपके पास है यहाँ पे S2 माइनस एंड Cl माइनस. अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये थर्ड पीरियड में आते हैं, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3 है. और अगर इनकी बात करोगे तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है. दैट मीन्स n की वैल्यू 2 है. जो हम पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है, देन थर्ड पीरियड है. तो दो जो है इसमें से दे आर कमिंग फ्रॉम इस पीरियड में और बाकी दो इधर पे. तो सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस 2 दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. देखा आप इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, सोडियम के पास होता है टोटल 11, एक प्लस चार्ज है मतलब एक लूज किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम के पास 12 चार्ज होता है, प्लस 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो पहले मैंने शेल दिखा यहाँ पे, ये n इज इक्वल टू 3 शेल के हैं, ये n इज इक्वल टू 2 शेल के हैं. ठीक है, दीज आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अगर आप सल्फर की यहाँ पे बात करोगे, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्लोरीन
17 होता है, एक माइनस चार्ज, तो यू विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स. This is your 16 plus 2 minus charge, 18 electrons. So these are also isoelectronic. तो पहले शेल के हिसाब से हमने देख लिया ये दोनों का साइज एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम ज़्यादा ही होगा. अब इन दोनों में हमको देखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, मतलब 17 प्रोटॉन है क्लोरीन के पास, इसके पास 16 प्रोटॉन है. तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना कम साइज, तो ऑफ कोर्स ये ऑर्डर हो जाएगा. और ये दोनों इन दोनों से तो ज़्यादा होंगे ही. अब इसमें चेक करोगे तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पुल करेगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज का ऑर्डर हो जाएगा दिस वन. नाउ अब सेकंड पे आते हैं. ओके, सेकंड के केस में वी हैव S2 माइनस Cl माइनस, अभी ऊपर देख लिया है, सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रही मैं. तो ऑफ कोर्स S2 माइनस विल बी ग्रेटर देन Cl माइनस. दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ओके, ये अनायंस है एंड दीज आर योर न्यूट्रल एटम्स. तो न्यूट्रल एटम्स का जो एटॉमिक साइज होता है अनायंस के केस में, अनायंस का साइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द न्यूट्रल एटम, दैट इज योर पेरेंट एटम. तो S2 माइनस और Cl माइनस तो साथ में साइज ज्यादा होंगे ही. ओके, अब दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दैट इज हियर आई हैव Cl माइनस, हियर आई हैव सल्फर. दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो मुझे क्या देखना है अब, Z/E रेशियो. और Z/E रेशियो यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्या होगा, Z बाई मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होते हैं क्लोरीन पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए 18. दैट मीन्स वैल्यू आएगी 0.95. ये सल्फर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, दैट मीन 1. तो जितनी ज़्यादा वैल्यू है आपके पास Z/E रेशियो का, उतना कम साइज होगा. ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ. तो ये साइज इधर हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा क्लोरीन. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यू हैव मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम. ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे तो एल्यूमिनियम जो है आपके पास वो थर्ड शेल में आता है, लाइक थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एक शेल एक्स्ट्रा होगा. और ये तीनों N=2 वाले हैं, मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट. तो एल्यूमिनियम का तो ज़्यादा होगा ही. अब इन सब में चेक करोगे आप आयंस के केस में, मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम +2, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अनायन है. और अब आपको चेक करना है न्यूक्लियर का चार्ज. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज है 9, सोडियम के पास है 11, मैग्नीशियम के पास है 12. ठीक है, तो यू हैव टू चेक द साइज बिटवीन दीज एलिमेंट्स जहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ रहे हैं. बट यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है अनायन. ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो अनायन होने की वजह से, बिकॉज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा उसमें. तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. ठीक है, और इसका जेड इफेक्टिव भी कम है, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज भी कम है. इसका चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज साइज क्या होगा, काफ़ी कम. So this is how you can find out the size of all the elements. मैग्नीशियम +2 का साइज किससे बड़ा होगा, सोडियम से. कैसे बड़ा होगा संप्रेता, हाउ मैग्नीशियम +2 विल बी ग्रेटर देन सोडियम +1. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, मैं पीरियोडिक टेबल इसमें नहीं चेक कर रही हूँ मैं. पहले क्या, शेल्स चेक करो, शेल्स जिसके पास ज़्यादा साइज उसका ज़्यादा. ओके, उसके बाद आप देखो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर है तो Z का चार्ज देखो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो. अगर उससे भी आंसर नहीं आ रहा है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, देन Z/E का रेशियो देखो. ठीक है, this is what you have to follow to find out this thing. कुछ भी डाउट है तो पूछो जल्दी से. Okay, next topic is your shielding effect and screening effect.
हाँ, प्रशस्ति साइज चेक करने के लिए आपको एक प्रॉपर वो फॉलो करना पड़ेगा ना, अपनी मर्जी से आप कैसे भी फॉलो करो, वो कोई इशू नहीं है। वो तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो दिस इज हाउ यू कैन डू। बट अगर लॉजिक लॉजिक वाइज अगर आप देखोगे तो ये तो बोल दिया मैंने कि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इनके ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। इनकी अगर आप बात करोगे कि Na प्लस और ये Mg+2, अब आपको इनमें कैसे चेक करना है, तो आपको ये पता है कि पीरियोडिक टेबल देख के कर लो, नो इश्यूज इन दैट। मेरे पास यहाँ पे है सोडियम एंड मैग्नीशियम, है ना। अगर हम बात करेंगे तो सोडियम का साइज जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, जो कि हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। बट ये तो तब केस आ जाएगा जब न्यूट्रल है आपके पास एटम। यहाँ पे Na+ है और मैग्नीशियम+2 है, तो अभी क्या करोगे, अभी थोड़ी सोडियम का साइज ज़्यादा होगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप इसमें देखोगे कि 11 प्रोटॉन्स हैं बट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि 12 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो रहा है। तो ऑफकोर्स सोडियम का साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्यों ज़्यादा होगा, चार्ज की वजह से थोड़ी हम देख रहे हैं, लॉजिक तो उसका डिफरेंट ही है। ओके मैम। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली भी यही आ रहा है ना। हाँ मैम। ओके, और क्या बोल रहे हो आप, Z/E रेशियो का वैल्यू। ये क्या लिखाया है संपदा, यहाँ पे चेक करो जो आप बोल रहे हो, मैंने उल्टा थोड़ी लिखा है। Z/E रेशियो कम होगा तो एटॉमिक साइज ज़्यादा नहीं होगा। आई हैव टोल्ड यू दिस ना कि इनवर्स रिलेशन है, उल्टा थोड़ी लिखा है। ये तो मैंने कहीं नहीं बोला कि Z/E का रेशियो कम होगा तो एटॉमिक साइज भी कम होगा। Z/E का रेशियो का मतलब क्या है कि अगर 1 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो है। अगर Z, अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो साइज छोटा ही होगा ना, तो Z/E रेशियो अगर ज़्यादा है तो साइज कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। फाइन, तो कोई भी अगर मेरे पास लेट्स से ये न्यूक्लियस है, ओके, यहाँ पे हमारे पास शेल्स है। मैं अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ, लेट्स से आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन हियर, इन बिटवीन भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन बिटवीन। अगर मैं इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इसके पास 2 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। और वो 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से हैं, पहला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है इसको अपनी तरफ। और दूसरा, फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स। ठीक है, तो ये इन बिटवीन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से रिपल्शन भी तो होगा बिकॉज इनका सेम ही चार्ज है। सो फ्रॉम हियर दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन एंड फ्रॉम न्यूक्लियस इट विल फील अट्रैक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर? जितना फोर्स न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा अपनी तरफ पुल करने के लिए, due to this in between electrons, is nucleus ka pull for the last electron which is present in the valence shell is going to decrease, yes or no? है ना? जो न्यूक्लियस पुल लगा रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट इन द इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो एक्चुअल न्यूक्लियस का चार्ज पहुंचना चाहिए था, जो भी एक्चुअल चार्ज होना चाहिए था, इट विल बी लेस देन द अर्लियर। ओके, इट विल बी लेस देन द अर्लियर। जितना, मान लो बीच में इन बिटवीन ये मैंने न्यूक्लियस लिया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था बीच में कुछ भी नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये न्यूक्लियस वेरी इजीली इसको पुल करेगा बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स, ओनली वन काइंड ऑफ अ फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज इन बिटवीन में कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अगर इन बिटवीन ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हिंड्रेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये फोर्स डिक्रीज होगा, एंड दैट डिक्रीज्ड फोर्स इज कॉल्ड एज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर हम सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं दैट मीन्स हम होल बात कर रहे हैं कि कितना उसके ऊपर चार्ज आएगा, बट जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें वो हमको रिजल्टेंट बता रहा है कि इन बिटवीन का भी हमने हटा के जो भी न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा होगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के, दैट विल बी नोन एज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो यू कैन राइट डाउन हियर the electrons present in inner shells weakens the force of attraction from nucleus. This thus the outermost electron experiences reduced nuclear charge, or you can say that attraction, known as effective nuclear charge. Okay, so this is the definition of effective nuclear charge. Now what is this shielding effect or what is your screening effects? अब ये जो in between वाले electrons हैं, what they are doing, थोड़े दूसरे terms में हम बात कर रहे हैं। ये जो in between electrons हैं, इस last वाले electron को क्या कर रहे हैं, shield कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो screen कर रहे हैं from the effect of nucleus, yes or no? अगर ये बीच में नहीं होंगे तो there is no hindrance present in between them. So when these inner electrons are present, these inner electrons are screening, or you can say that shielding, or you can say that protecting the last electron or valence electrons from the force of nucleus, and this effect is known as your screening effect or shielding effect. So you can write down here electrons present in inner shells shields bracket में you can write down protect the valence electron from
nuclear charge or attraction, and this is known as shielding effect or screening effect. Write down this. संपदा नॉर्मल एटम की बात हो रही है यहाँ पे। वो कटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल, सबके लिए। सो हियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज जेड इफेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर मैनर। और वो किसके इक्वल होगा? जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, जेड इज व्हाट, इट इज योर एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा हियर रिप्रेजेंट द शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये सिग्मा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो वो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, और रूल फॉलो करके हम ये बता कर सकते हैं कि कितना जेड इफेक्टिव लग रहा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, अगर ये केसेस हैं तो। एंड दैट इज नोन एज योर स्लेटर्स रूल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर shielding effect or screening effect can be calculated। screening effect या फिर constant बोल लो, इसको हम इफेक्ट नहीं, कि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट लिख लो। screening constant and screening constant because it has some value। so shielding effect या फिर screening constant, they can be calculated by a rule which is known as Slater's rule। अब स्लेटर्स रूल क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं उसके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कि रूल क्या क्या है। ओके, ये सिग्मा है बेटा, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, दिस इज नोन एज सिग्मा। ओके क्रिश, जैसे ये पाई होता है, ये अल्फा होता है, ये गामा होता है, ये बीटा होता है, वैसे ये सिग्मा होता है। सबके अलग अलग इस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब इसका रूल क्या है? फर्स्ट रूल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन एलिमेंट। जो भी आपको एलिमेंट गिवन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रीअरेंज द इलेक्ट्रॉनिक configuration of given element in increasing order of n।
व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि n की वैल्यू यहाँ पे 4 की ज़्यादा है, बट मैंने इसको पहले लिखा हुआ है बिकॉज एनर्जी कम होती है। तो अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप अरेंज्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? It will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 and 4s2। बात समझ में आई? Yes or no? This is clear everyone? Let me know. हाँ ना, कुछ बोलो तो पता चलेगा। आराम से बैठे हुए सब समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have to respond so that I would know that you are listening or not. How would I know? चलो, थर्ड रूल बोल रहे हैं कि ये तो सेकंड चीज कर ली। थर्ड क्या बोल रहे हैं आपको कि अगर NS या फिर NP ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, देन आपको क्या करना है। अब हम एग्जांपल्स भी करेंगे, डोंट वरी, इसके अकॉर्डिंगली। सो इट इज योर फॉर NS और NP ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में a sum of 0.35 is given to each electron present in same shell। Second point is, अभी लिख लो, then I will explain you with the help of an example। प्रशस्ति, ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। 4s को हमने पहले रखा हुआ है बिकॉज इसकी एनर्जी कम होती है, बट ये बोल रहा है कि रूल क्या बोल रहा है, रीअरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द गिवन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n। 4 का वैल्यू तो छोटा है ना, मतलब सॉरी बड़ा है ना, तो 3 पहले आना चाहिए, बट एनर्जी 4s की कम होती है तो फिलिंग पहले 4s की करते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे स्लेटर्स रूल लगाना है तो इसको आपको बाद में लिखना पड़ेगा, तो वही रीअरेंज करके बाद में लिख दिया मैंने। Yeah, okay, ma'am. ओके, सेकेंड पॉइंट है इसमें, a sum of 0.85 is given to each electron present in n-1 shell। अभी लिखो, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी ये चीजें। एंड थर्ड पॉइंट है, a sum of 1.00 is given to each electron present in n-2 or in inner shells। बी है फॉर ND एंड NF ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो D या फिर F ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसके बारे में अगर मुझे स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए a sum of 0.35 is given to each electron present in same shell, this thing only। Second point, a sum of 1.00 is given to all the electrons lying left to
Nd and Nf electrons. जल्दी से लिखो, then I will explain you this with the help of an example. क्या बोल रहे हो संप्रीता, समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं 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 बेटा, 1 और 2 के हिसाब से नहीं किया है हमने। मैंने आपको ऐसे लिखवाया था ना, 1 2 3 4, और इस तरीके से हम आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से फिल करेंगे, ये बताया था ना। इसमें आपको ये भी था कि 4 की फिलिंग 3 के बाद में होती है, क्योंकि 4 की एनर्जी कम होती है, इस वजह से हम फिलिंग इस तरीके से कर रहे हैं। बट आपको अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और आपको स्लेटर्स कांस्टेंट निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखो, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। अभी समझ में आया? 1 और 2 की वजह से कुछ नहीं किया कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, नहीं, हम 3D और 4s के हिसाब से बोलना चाह रहे हैं। ओके, चलो देख लो, इतना कंफ्यूजन हो रहा है ये अरेंजिंग, आई डोंट नो इसमें डिफिकल्ट क्या है समझने में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो इस तरीके से फिल करते हैं ना, ये होता है एस पी एस पी डी, एस पी डी और एफ। तो फिलिंग कैसे करते हो इसमें? पहले 1s में भरते हो, फिर वापस जाते हो, फिर 2s में भरते हो, फिर वापस जाते हो, फिर 2p में भरते हो, फिर 3s में भरते हो, फिर 3p में भरते हो और 4s में भरते हो, फिर 3d में जाते हो। तो आपने 4s को पहले भर दिया ना 3d से, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। लेकिन आपको यहाँ पे अरेंज करना है, क्योंकि हम स्कैंडियम का कैसे लिख रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, इसके हिसाब से मैंने लिख दिया जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 21 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए मैंने। बट ये बोल रहे हैं स्लेटर्स रूल कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप इसको चेंज करोगे, 3 पहले आता है 4 के और 4 बाद में आता है, तो मैंने अपोजिट कर दिया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 और 4s2। It's not because of 1 and 2 electrons which I have filled. It is because of कि 3D का 3 पहले आएगा और 4 इधर बाद में आएगा। बट भरते टाइम अगर हम लिखते हैं दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑलवेज, बट अगर आपको कांस्टेंट निकालना है तो ये रीअरेंज करना पड़ेगा, अगर कहीं कुछ ऐसा आ रहा है तो। समझ में आया अभी? हाँ, प्रशस्ति वैसे ही चलेगा, 1 2 3 4 5 6 इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, वरना तो ये फॉलो करोगे हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग करनी है वो हमेशा ये फॉलो करोगे। बट कायदे से होना तो 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इसी हिसाब से होना चाहिए था। बट फिलिंग तो हम इसके हिसाब से करते हैं, तो आप उसको रीअरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 5 6 जहां तक लेके जाना है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते टाइम ये लिखोगे, नहीं। दिस इज फॉर ओनली दिस पर्टिकुलर स्लेटर्स रूल, ओनली फॉर दिस वन। अदरवाइज यू विल ऑलवेज फॉलो दिस thing, this way of writing the electronic configuration. क्लियर है सबको? चलो, नेक्स्ट इज योर वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ shielding constant for valence electrons in case of alkali metals. Also calculate effective nuclear charge for them.
ठीक है, आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे होंगे, तो पॉइंट्स सब आपके नोटबुक में है ना? तो मैं बार बार स्क्रीन ऊपर नहीं करूंगी, मुझे तो पॉइंट्स याद है तो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगी। यू हैव ऑल द पॉइंट्स रिटन, इसलिए पहले लिखवा दिया। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लिथियम की। देन वी हैव योर सोडियम, पोटेशियम, बाकी बाद में करते हैं। अब लिथियम का सबसे पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, 1s2 2s1, है ना? और इसमें मुझे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है, इसमें ऑलरेडी 2 है, तो मुझे कुछ रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज योर स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। तो हम कैसे निकालेंगे? तो रूल में चेक करो, हमेशा स्क्रीनिंग इफेक्ट जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है वो मोस्टली हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ इस इलेक्ट्रॉन की। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो रूल क्या बोल रहा है, अपनी नोटबुक में चेक करो। फॉर एनएस और एनपी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एनएस और एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए अगर कांस्टेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, अ सम ऑफ 0.35 इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल। इसका मतलब है कि 2s में अगर कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो हम उसको वैल्यू देते हैं 0.35, बट यहाँ पे तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको छोड़ दो, सेम शेल वाला तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, अ सम ऑफ 0.85 इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल टू द शील्डिंग कांस्टेंट। तो ये जो शेल है आपके पास, ये n-1 ही तो है, इसको अगर मैंने n लिया तो ये n-1 हो गया। दिस इज योर 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो दिस इज योर n-1 शेल। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप 0.85 का वैल्यू दोगे। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वैल्यू कितना देना है, 0.85। तो टोटल वैल्यू हो गया यहाँ पे 0.85 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1.7। तो सिग्मा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1.7। अब क्वेश्चन आपको ये भी बोला है कि जेड इफेक्टिव भी निकालना है, एंड जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी, 3, एटॉमिक नंबर 3 होता है, माइनस सिग्मा कितना आया, 1.7। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1.3, सॉरी नॉट सिग्मा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्ट की वैल्यू आ गई 1.3। ऐसे आप सोडियम के लिए निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए दिस इज योर सेम शेल। तो पहला रूल, अगेन इलेक्ट्रॉन एस में है तो रूल तो वही फॉलो करोगे। पहला बोल रहा है सम ऑफ 0.35 इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल। सेम शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले पे आओ, अ सम ऑफ 0.85 इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 शेल। तो n-1 में कौन कौन से आ जाएंगे, 2s और 2p, क्योंकि ये अगर n है तो दिस विल बी n-1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 वाले शेल्स ये हो गए। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कितना सम देने वाले हो, 0.85। तो 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 0.85, ठीक है, प्लस नेक्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं, पढ़ो उसमें, अ सम ऑफ 1 इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-2। तो ये n-2 ही तो हो गया, दिस इज योर n-2। कैसे, n का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 की तो बात हो रहा है। तो इसमें जो भी आएगा उसको आपको वैल्यू 1 देना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो 2 इंटू 1, इन सबको ऐड कर दो आप, 2 इंटू 1 दैट इज 2, प्लस 8 इंटू 0.85, वैल्यू आ जाएगा योर 8.8। ऐड करोगे 8.8 आएगा। जेड इफेक्टिव निकालना है, तो सोडियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 11। तो 11 माइनस 8.8, तो जेड इफेक्टिव निकल के आ जाएगा 2.2। क्रिश वेट करो, 0.35 कर देंगे, बताऊंगी सारे एग्जांपल्स बताऊंगी, डोंट वरी। आई विल टेल एवरी एग्जांपल्स। ठीक है, हम डी वाली भी बात करेंगे, सेम शेल वाली भी बात करेंगे, वो सब बात करेंगे। धीरे धीरे सारा थोड़ा थोड़ा करके देखोगे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। पोटेशियम इज, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, कैसे लिखोगे,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये आपके पास सेम शेल हो गया। सेम शेल में तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये n हो गया, ये n-1 है, ये n-2 है, और ये उससे पहले का है। तो रूल के अकॉर्डिंगली n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.85 देंगे। तो 0.85 इंटू 8 प्लस यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और n-2 और उससे पहले के जितने भी होंगे। ध्यान से पढ़ो, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। अ सम ऑफ 1 इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-2 और इन इनर शेल्स। उसके अंदर जितने भी शेल्स होंगे वो सब आपको 1 ही वैल्यू आपको ऐड करनी है वहां पे। तो इधर हो गया 6 + 2, दैट मीन्स 8 + 2 10। तो 10 इंटू 1, इसका वैल्यू जब आप ऐड करोगे दिस इज गोइंग टू बी 16.80। तो वैल्यू आ गई 16.80। जेड इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। 19 माइनस 16.8 इज इक्वल टू 2.2। पोटेशियम के बाद रुबीडियम, उसी के जस्ट नीचे रुबीडियम आता है। रुबीडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6 and 5s1। ठीक है, फाइंड आउट करो इसका कितना वैल्यू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3D10 लिखना भूल गई हूँ मैं। 4s2, 1 सेकेंड, 3D10 भी होगा। 4p6, 5s1। तो पहले इसको अरेंज करोगे। इफ यू रिमेंबर यू हैव टू अरेंज इट फर्स्ट। करो। नाजनीन 10 इसलिए आया, ये हो गया आपके पास 6 +2 +2। तो n-1 के लिए 0.85 होता है, उसके बाद n-2 और उसके पहले जो भी आ रहा हो सबका आप 1 ही देते हो उसको। ओके, जो भी आ रहा हो। Okay, ma'am. इट्स नॉट जस्ट लाइक n-1। n-2 से पहले मान लो 1s से पहले कुछ 0s आ रहा होता, उसको भी आप 1 ही देते हो। उससे पहले जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे सबको आप 0 दोगे। ओके, चलो देखो इधर। सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करूंगी क्योंकि यहाँ पे ये अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो यू हैव टू फर्स्ट अरेंज इट। अरेंज करने के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2। दिस इज अरेंज्ड फॉर्म। अब मुझे निकालना है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज 5s1। हम इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस शेल में तो कुछ नहीं है। दिस इज योर n, दिस इज योर n-1 और ये n-1 से पहले वाले। n-1 के लिए आप लगाते हो 0.85 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 8 प्लस उससे पहले जितने भी हैं उन सबको आप वैल्यू दोगे 1। दैट मीन्स 10 + 10, 20, 28, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स को आप वैल्यू दोगे 1। ठीक है, इसको ऐड करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 34.8। और मुझे जेड इफेक्टिव निकालना है, तो रुबीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37 माइनस 34.8 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको।
लास्ट है इसी अल्कली मेटल्स में सीजियम. So let's talk about cesium. In the case of cesium उसका atomic number होता है 55. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1. So this is your electronic configuration for cesium. अब इसमें भी सब उल्टा पुल्टा है तो आपको क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा पहले. तो मैं रीअरेंज फॉर्म लिखती हूँ पहले. तो रीअरेंज फॉर्म में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 3d10 4s2 4p6 4d10 देन 5s2 5p6 6s2. तो एस पी डी एफ करके आपको 1 2 3 4 5 6 में इसको हमने रीअरेंज कर दिया. दिस इज योर एन एंड दिस इज योर n-1. और बाकी सब जो भी आ रहा है उससे पहले उन सबको आप वैल्यू दोगे 1 सिंपली. तो यहाँ पे वैल्यू ये 1 हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 55 है और इसी के लिए हमको निकालना है. तो n-1 के केस में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप दोगे 0.85 प्लस इन सब में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, 10 20 30 40, कितना आ रहा है 43. काउंट करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे मैम हैं. 46 आ रहे हैं. 46, ठीक है. सो 46 इंटू 10, बाकी सब सॉरी 1, 46 इंटू 1, इन सबको आप 1 की वैल्यू दोगे. अब सिंपली ऐड कर दो और यहाँ पे जब इन सबको कैलकुलेट करोगे सो वैल्यू विल बी योर 52.8. एंड आपको फाइंड आउट करना है जेड इफेक्टिव. तो एटॉमिक नंबर होता है 55 माइनस 52.8, वैल्यू आ जाएगी 2.2. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? समझ में आया सबको? मैम. ओके. अब अगर मैं यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, अब अगर आप नोट करो लिथियम को छोड़ के, लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1.3 आ रही थी. बाकी सबके लिए सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम चारों के लिए वैल्यू सेम आ रही है 2.2 2.2 2.2 एंड 2.2. ओके. सो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, what does this statement, this thing says? For alkali metals, effective nuclear charge, that means here Z effective, remains constant as we move from top to bottom, except लिथियम. तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होता है वो बाकी सबके रेस्पेक्ट में वैसे भी थोड़ी सी अलग होती है. तो बाकी सब में आप देख रहे हो जेड इफेक्टिव सेम आ रहा है. इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जो भी न्यूक्लियर अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो भी इफेक्ट लगा रहा है वो सब में सेम आ रहा है. तभी जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है बट नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहा है. बट न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट योर डोमिनेटिंग फैक्टर क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है, सेम. एंड नंबर ऑफ शेल्स बिकम्स योर डोमिनेटिंग फैक्टर. इसीलिए हम साइज को कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंगली. बात समझ में आई है ना? जेड इफेक्टिव क्या है? इट इज द इफेक्टिव फोर्स न्यूक्लियस इज अप्लाइंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. चलो, let's do, write down this and let's do one more question.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ shielding constant for valence electrons in the case of second period elements. सेकेंड पीरियड्स एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब हमें इन सब के लिए निकालना है. तो यहाँ पे लिख लिया हमने लिथियम. लिथियम के लिए हमने अभी ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. 1s2 2s1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.85 इंटू 2, जो कि सिग्मा की वैल्यू आ रही थी 1.7, एंड माइनस करोगे तो z इफेक्टिव आ रहा था 1.3. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट इज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन. लिथियम के बाद आ रहा है आपके पास बेरिलियम. बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको निकालना एक के लिए ही है. ठीक है, आप एक ही के लिए निकालोगे, बिकॉज एक जिसके लिए फाइंड आउट करना है उसको थोड़ी हम इंक्लूड करेंगे. तो अब जो आप बोल रहे थे कि मैम 0.35 कब लगेगा, जब इसके लिए निकालोगे आप, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, क्योंकि एक के लिए आपको फाइंड आउट करना है. तो सेम शेल में जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका सम आएगा 0.35, और उससे पहले का आपको पता ही है 0.85 इंटू 2. बात समझ में आई? तो वैल्यू कितनी आएगी? 2.05. तो यहाँ पे लिख दो 2.05. अब आपको z इफेक्टिव निकालना है, तो 4 माइनस 2.05 कितना आया वैल्यू? जल्दी बताओ. कोई सुन रहा है क्लास में? मैम 1.95. रिस्पॉन्ड कौन करेगा? बस बैठ के सुनते रहो. इट इज योर 1.95. ठीक है, एक बेरिलियम के बाद आ जाओ बोरॉन पे. बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5. ना 1s2 2s2 2p1. ठीक है, अब आपको इसके लिए निकालना है. दिस इज योर n, दिस इज योर अगेन n, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, एंड दिस इज योर n-1. इसके लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये इसके लिए निकालना है आपको. जो भी सेम शेल में अब अगर प्रेजेंट है उसके लिए क्या लिखोगे आप? 0.35 इंटू 2 प्लस 0.85 इंटू 2. तो वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे, दिस इज गोइंग टू बी योर 2.15. अब बोरॉन का z का वैल्यू होता है 5, तो अब मुझे करना है 5 माइनस 2.15. सो वैल्यू विल बी हियर, दिस इज 2.85. बोरॉन के बाद देयर इज कार्बन. एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2. ये सेम शेल पे हो गए, ये n-1 पे हो गया. सेम शेल की अगर आप बात करो तो उसके लिए आप एक के लिए तो फाइंड आउट ही करना है, बाकी 3 को आप क्या करोगे? 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 0.85 इंटू 2. If you add these two values, you will get 3.10. अब कार्बन के केस में z की वैल्यू होती है 6, तो 6 माइनस 3.10 you will have 2.90. चलो, कमिंग बैक टू कार्बन के बाद नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3. ये n, ये n-1. एक के लिए तो फाइंड आउट ही करना है, तो बाकी बचे टोटल 4 इंटू 0.35. यहाँ पे 0.85 इंटू 2.
दोनों को ऐड करोगे तो योर वैल्यू फॉर नाइट्रोजन विल बी 3.10। अब 3.10 को आपको 7 से माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द Z इफेक्टिव। सो 7 minus 3.10, it is equal to 3.90. Okay, संपदा एक यहाँ पे टोटल n में, इस n में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं, बाकी सबके लिए फाइंड आउट नहीं करते। तो एक को तो मैं वो कंसिडर कर रही हूँ जिसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है, बाकी बचे हुए कितने हुए? इधर 2 और यहाँ से सिर्फ एक, तो 3 ही तो बचे, तो 3 इंटू 0.35। सेम इज द केस ऑफ बेरिलियम ऑल्सो। यहाँ बोरॉन में भी यही किया, इसके लिए तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसको थोड़ी काउंट करूंगी मैं, जिसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है मैं उसके लिए काउंट नहीं करूंगी, उसके अलावा जो भी बचे इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए काउंट करेंगे। बेरिलियम पे आ जाओ, बेरिलियम पे भी आपके पास इस केस में आपको इसके लिए तो फाइंड आउट ही करना है, तो एक के लिए फाइंड आउट करना है, एक को बचे हुए एक को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 0.35 से, जिसके लिए फाइंड आउट करना है उसको नहीं काउंट करना है। और हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं, सबके लिए नहीं करते। बेरिलियम के लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 2.4 आ रहा है, पक्का? मैम बोरॉन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, बोरॉन के लिए आ रहा था, ओके। 2.4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 2.6। ओके, करेक्ट कर लो, वैल्यू 2.6 आ रही है यहाँ पे। कार्बन वाला करेक्ट है क्या वैल्यू? कार्बन का वैल्यू करेक्टली लिखा हुआ है? अच्छा, कार्बन का 2.15 आएगा, सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो कार्बन के लिए योर वैल्यू विल बी 2.15 एंड 6 माइनस 2.15 करोगे तो यू विल हैव योर 4 पॉइंट समथिंग, 3.85। okay, nitrogen के लिए it is 3.10, so that will be your 7 minus 3.10, that is 3.90। ठीक है, ठीक है। दिस इज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। अब ये आपके पास n हो गया एंड दिस इज योर n-1। n में एक के लिए तो आपको निकालना ही है, तो बचे कितने? 4 + 2 6 थे, एक के लिए निकालना है, बचे आपके पास 5। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35 से। So 5 into 0.35 plus 0.85 into 2. That is coming out to be 3.45। अब आप इसको माइनस करोगे 8 से तो Z इफेक्टिव आ जाएगा। तो 8 माइनस 3 पॉइंट, मैम कार्बन का 2.75 आएगा। नहीं बेटा, कैलकुलेट करो सही से। अच्छा रुको, पहले ये लिख लो। 0.55, ठीक है। कार्बन का क्या है हमारे पास? 0.85 into 2 plus 0.35 into
3. Okay, 2.75. So 6 minus 3, 2.75. So 3.25. ओके, बाकी सब करेक्ट है कैलकुलेशन में? चलो, ऑक्सीजन के बाद है हमारे पास फ्लोरीन. फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p5. अब मुझे फाइंड आउट करना है इस 5 के एक इलेक्ट्रॉन के लिए. दिस इज n और दिस इज n-1. 5 + 2 7. एक के लिए निकालना है तो बचे 6. 6 को 0.35 से मल्टीप्लाई करो. ये 0.85 इंटू 2. दोनों को ऐड करोगे तो यू विल हैव द वैल्यू 3.80. अब 9 में से माइनस कर दोगे 3.80 को तो यू विल हैव 5.2. और लास्ट में आपके पास आ रहा है नियॉन. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10. कैलकुलेशन देखते रहना, कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो बताना. 1s2, 2s2, 2p6. एक के लिए निकालना है. दिस इज योर n, दिस इज n-1. यू हैव टू फाइंड फॉर 1. तो बचे कितना? 7. तो 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85. This becomes 4.15. So 10 minus 4.15. 5.85. लिखो जल्दी से. ओके, सो अब आप इनका वैल्यूज अगर चेक करोगे तो आपने देखा पहले लिथियम के केस में जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1.70 है, फिर 2.5 है, फिर 2.05 है, फिर 2.40 है, फिर 2. इसकी बात कर रही हूँ, सिग्मा कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू देखोगे जेड इफेक्टिव की, चेक करो धीरे धीरे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो ये वैल्यूज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. यहाँ पे इंक्रीज हो गया. अभी जाना मत, अटेंडेंस लेना है, बाद में बोलना मत कि मैम एब्सेंट कर दिया है. ये हो गया, ये हो गया. ओके, धीरे धीरे वैल्यूज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो आप यही देखोगे कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं और हमारे पास पीरियड सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इंक्रीजेस. तभी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो, फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड elements effective nuclear charge increases from left to right, therefore atomic size decreases. लिखो.